A very good afternoon to all. Today now we going on competency number 10.5, antigen, role of helper T cell and vaccine. आप लोगों ओके नाउ वी डिस्कस एंटीजन. कौन बताएगा एंटीजन क्या होते हैं? एंटीजन पैथोजेंस. Today our class SLO is explain the antigens, role of helper T cell, immunizations, features of an effective vaccines, outline hybridoma technology. What does means antigens? Antigens can evoke an immune response. Immune response may be humoral or cellular or both. A small part of antigen is recognized by the immune system. This part is known as antigen determinant or epitope. What does means heptans? Low molecular weight cannot evoke an immune response by themselves. Can evoke an immune response when combined with some other large molecules. When the molecule response develop, the free heptans can be recognized by the immune system. देखिए जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी अपना जो टॉपिक है मेन कंसर्न है कि रोल ऑफ हेल्पर टी सेल. जो हेल्पर टी सेल है वो किस तरीके से रोल प्ले करेगी. देखिए जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है इज द फंक्शंस ऑफ टी लिम्फोसाइट्स. टी लिम्फोसाइट्स आर द फोर टाइप्स: साइटोटॉक्सिक किलर टी सेल्स, हेल्पर टी सेल, सप्रेसर टी सेल्स एंड मेमोरी टी सेल्स. सबसे पहले अपन टी सेल की जनरल स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं कि ईच टी सेल हैज सम ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर्स दैट कैन रिकॉग्नाइज स्पेसिफिक एंटीजन. A T cell receptor is a protein made up of an alpha chains and a beta chains joined by disulfide bond. यानी कि जो हेल्पर टी सेल है दो चेन है वहां पे अल्फा चेन और बीटा चेन. दोनों जो चेन है वो आपस में लिंक्ड है बाय disulfide bond. Each chain has two extracellular domains, a transmembrane region and a short cytoplasmic tail. T cell है, T cell रिसेप्टर है, अल्फा चेन है, बीटा चेन है, एंटीबॉडी बाइंडिंग साइट है. The alpha chain has two extracellular domains, alpha 1 and alpha 2. Beta chain also beta 1 and beta 2. The alpha 1 and beta 1 domains are on the periphery. देखिए जो हेल्पर टी सेल थी वहां पे दो चेन, अल्फा चेन और बीटा चेन. अगेन फिर से वहां पे अल्फा चेन टू टाइप्स है, अल्फा 1 और अल्फा 2, बीटा 1 and beta 2. The alpha 1 and beta 1 domains are similar to variable regions of antibodies. These are also known as variable alpha and variable beta. The alpha 2 and beta 2 domains are similar to constant region of antibodies. The antigen binding site or cleft is found by the alpha 1 and beta 1 domains. Structure है T cell receptor, alpha 1, alpha 2, बीटा चेन, बीटा 1, बीटा 2. एंटीजन बाइंडिंग साइट है, ये कांस्टेंट रीजन है, ये वेरिएबल रीजन है. अगर हेल्पर टी सेल पे आता है, अगर आपको उसकी स्ट्रक्चर बनानी है आपको, तो ये सब कुछ उनमें पुटअप करना रहेगा. अल्फा चेन, बीटा चेन, कांस्टेंट रीजन, वेरिएबल रीजन, एंटीजन बाइंडिंग साइट कहाँ पे, और टी सेल रिसेप्टर TCR. TCR diversity, T cell receptor. T cell receptors have a diversity similar to antibody diversity. TCR diversity also arises from gene rearrangement. The gene of four variable regions: alpha chain, variable alpha, one of the 70 V segments, one of the 61 J segments. Thousands of different combinations are possible. The gene of variable regions of beta chains, variable beta, one of the 52 V segments, one of the 2 D segments and one of the 30 J segments. Again 1000 different combinations are possible there. When an alpha chain combines with a beta chain, millions of combinations are possible. A given T cell has one particular combination and is specific for one particular antigen. Functions of helper T cell. Helper T cells
Helper T cells share some common features with cytotoxic T cells. T cells receptors are made up of alpha and beta chain. Cytoplasmic tails of T cell receptor is associated with CD3 complex having items. Full form क्या है इसकी? इम्यूनो रिसेप्टर टायरोसिन बेस एक्टिवेशन मोटिफ. ITF means immuno receptor tyrosine base activation motif. They have co-receptor associated with LCK, lymphocyte tyrosine kinase protein. Intracellular signals occur by a cascade of phosphorylation reactions involving tyrosine. Helper T cell differ from cytotoxic T cells in the following respect. The co-receptor of CD4 made up of a single polypeptide chains folded into 4 extracellular domains D1, D2, D3 and D4. The joint between D2 and D3 domains is flexible. The T cell receptor recognizes the foreign peptide bonds of MHC class second protein. Antigen presenting cells MCH second proteins are present on the macrophages, dendritic cells and B lymphocytes. These cells are known as the antigen presenting cells APCS. Dendritic cells, macrophages and B lymphocytes. T cell receptor of a helper T cell bind to a specific antigens fragment displayed by MHC class second proteins of APC. The D1 domains and CD4 binds to beta 1 domains of the MHC second protein. LCK become active and phosphorylated items of CD3 complex. ZAP 70 bindings bind to phosphorylated items and phosphorylated the tyrosine residue of some target protein. ZAP means zeta associated protein. We result in the release of cytokinase form of helper T cells. ये एक्टिवेशन ऑफ हेल्पर टी सेल का डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन है. ये बाइंडिंग साइट है एंटीजन फ्रैगमेंट टी सेल रिसेप्टर एमएससी क्लास प्रोटीन सेकंड है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स CD4 हेल्पर टी सेल LCK CD3 कॉम्प्लेक्स आइटम्स. ये क्या है, क्या बोलते हैं अपन इसको? अल्फा बीटा गामा एप्सिलॉन नहीं है. ये कैसे होते हैं अल्फाबेट ग्रीक वाले? अल्फा बीटा गामा डेल्टा एप्सिलॉन ईटा थीटा. ये एक्स आई है. म्यू काई लैम्डा. ठीक है, तो ये एक्स आई चेन. IL-6 stimulate the growth of the mast cells and increase the synthesis of MHC class second proteins in B lymphocytes. GM-CSF stimulate the growth of the granulocytes and macrophages and also stimulate the differentiation of B cells and dendritic cells. IFN gamma activate macrophages and NK cells. TNF activate macrophages. Some lymphokinase attract the phagocyte cells to the site of infection. The releasing of lymphokinase lead to increase the number of helper T cells themselves, increase in the number of cytotoxic T cells, increase in the number of B cells and plasma cells, increase the number of antigen presenting cells, increase in the number of phagocytic cells and activation of phagocytic cells. In this way, both innate immunity and adaptive immunity are geared up to fight against the pathogen. The overall result is that an effective immune response is mounted to meet the challenging posted by antigen and pathogen. Helper T cell response to cells for help. The cell is given by antigen presenting cells. The cell is in form of an antigen fragment displayed on MHC second protein.
Yeah. Helper T cells do not destroy the antigen directly. They activate all arm of the defense systems and coordinate their actions. Helper T cells, therefore, described as the commanding officer of the defense force. If helper T cells are depleted or debilitated, the entire immune system is crippled. Immunization is a process by which active immunity against an infection is produced. कैसे करते हैं अपन इम्यूनाइजेशन? वैक्सीन जानते हैं आप, है ना? किस तरह क्या करते हैं अपन वैक्सीन में? क्या मैकेनिज्म होता है वैक्सीन का? मैकेनिज्म एक्शन ऑफ वैक्सीन। देखिए अपन स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं कि अगर आपकी बॉडी में कोई भी काउंटर पार्ट करेगा बाहर से कोई भी फॉरिजन पार्टिकल, तो आपकी जो इम्यूनिटी है वो दो बेस है ना। वहां पे कौन कौन से आपके? इनानेट और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनानेट इम्यूनिटी मीन्स ऑलरेडी पहले से ही है आपके पास में, है ना। एग्जाम्पल ऑफ इनानेट इम्यूनिटी, स्किन है, ठीक है, आपकी सैलाइवरी ग्लैंड्स हैं, और सेकंड पे आता है आपका एडेप्टिव इम्यूनिटी। एडेप्टिव इम्यूनिटी अगेंस्ट क्लासिफाइड इन टू टाइप्स। बताइए। एडेप्टिव इम्यूनिटी अगेन क्लासिफाइड इन टू टाइप्स। एक तो सेल बेस है, दूसरा आपको पढ़ा दिया ना ऑलरेडी, अभी ये टॉपिक है नहीं पढ़ा है, हो चुकी ना क्लास आपकी। फिर टी लिम्फोसाइट बेस, बी लिम्फोसाइट बेस, ऐसा कुछ नहीं था? ह्यूमरल, इम्यूनोग्लोबिन्स क्या होते हैं? अगर कोई भी पैथोजन फर्स्ट एनकाउंटर करता है तो बॉडी में कौन से इम्यूनोग्लोबिन्स एक्टिवेट होंगे? प्राइमरी इन्फेक्शन में आईजीजी, आईजीएम, आईजीए, आईजीडी, कौन सा होगा? आईजीजी। मदर मिल्क में कौन सा प्रेजेंट होता है? ए और एम। प्राइमरी रेस्पॉन्स एंड सेकेंडरी रेस्पॉन्स क्या होता है? एग्जाम्पल है जैसे कि फर्स्ट टाइम जो लोग कोविड हुआ जिनको, ठीक है, उनका जो ड्यूरेशन टाइम था रिकवरी का, सपोज कीजिए 10 डेज है, 15 डेज है, 20 डेज है। अगेंस्ट फिर से अगर वो इन्फेक्टेड होते हैं तो जो मेमोरी सेल हैं वो क्या करेंगी? जल्दी एक्टिवेट हो जाएंगी। और जो सेकेंडरी रेस्पॉन्स है वो क्या आएगा? क्विक आएगा। तो जिन लोगों को सेकेंड टाइम कोविड हुआ उनका रिकवरी रेट जल्दी था, क्योंकि फर्स्ट टाइम अगर आपकी बॉडी में इन्फेक्शन हो रहा है तो आपके जो सेल्स है, जो एंटीबॉडी बनेगी, वो फर्स्ट टाइम बन रही है, अभी उनको पता नहीं है, ठीक है, कि फॉरिजन जो पार्टिकल आया है इसके अगेंस्ट क्या बनाना अपने को।
जब सेकंड एनकाउंटर करेगा वो, तो जैसे आप लोग एक बार फेल हो जाओ सपोज करो, है ना, तो फिर आप क्या करते हैं, अच्छे से सिलेबस पढ़ेंगे, सारे एमसीक्यूज पढ़ेंगे, पूरा बैक ईयर का पेपर पढ़ेंगे, तो फिर आप जब बाकी जो आफ्टर 3 मंथ्स बाद जब एग्जाम लगेंगे तो पास हो जाते हैं। तो इम्यूनाइजेशन क्या है, वैक्सीन कंटेन स्मॉल डोज ऑफ एंटीजन, यानी जो वैक्सीन है अपन उसके अंदर क्या दे रहे हैं, एंटीजन ही अपन दे रहे हैं उनको। The antigen in the vaccine produce a primary response if the same antigen enter against it is destroyed quickly by the sensitized lymphocytes। ठीक है, पहले जो एंटीजन आया था फर्स्ट टाइम में इतना जल्दी क्विकली उसको अपनी बॉडी डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगी, अगर सेम एंटीजन सेकेंड टाइम एनकाउंटर करेगा तो आपकी बॉडी क्विकली उसको डिस्ट्रॉयड करेगी। इम्यूनाइजेशन इज यूज टू प्रिवेंट ए वेराइटी ऑफ इन्फेक्शन डिजीज। अपन लोग क्या करते हैं, अपन पहले वैक्सीन लगा देते हैं ना, ताकि अपन क्या कर रहे हैं, अपन सेल्फ मीडिएटेड एंटीजन को आपने क्या किया, इंजेक्ट किया है थ्रू वैक्सीन। अब क्या होगा, आपकी बॉडी के अंदर उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी का फॉर्मेशन हो जाएगा। बाहर से फिर सेकेंड टाइम अगर कोई भी आपको एनकाउंटर करेगा एंटीजन, तो ऑलरेडी अपने बॉडी के अंदर एंटीबॉडी प्रेजेंट है, तो वो सेकेंडरी रेस्पॉन्स क्विकली करेगी। क्या क्या फीचर्स होने चाहिए ऑफ इफेक्टिव वैक्सीन में, सेफ होना चाहिए, दी वैक्सीन इटसेल्फ शुड नॉट कोज डिजीज और डेथ, है ना, जैसे कि फर्स्ट टाइम जब कोविड आया तो बहुत सारे लोग बता रहे थे कि वैक्सीनेशन के बाद में डेथ हो रही है या फिर अदर डिजीज प्रॉब्लम कोज कर रही है, कि आपने पोलियो के लिए वैक्सीन लगाया था उसको तो हेपेटाइटिस हो गया, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। दूसरा है प्रोटेक्टिव होना चाहिए, मस्ट प्रोटेक्शन अगेन इलनेस फ्रॉम एक्सपोजर टू लाइव पैथोजन। जो भी वैक्सीन आपने बनाया है, जो भी आप लगा रहे हैं, वो उस पैथोजन के लिए इफेक्टिव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वैक्सीन तो आपने लगा लिया हेपेटाइटिस का, जैसे ही एंटीजन आया आपको हेपेटाइटिस हो गया पेशेंट को। प्रोटेक्शन शुड बी लॉन्ग लास्टिंग, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं है कि आज आपने वैक्सीन लगाया है आफ्टर 1 वीक आपको दोबारा रिक्वायरमेंट है ना, कुछ ऐसा ड्यूरेशन टाइम पीरियड होना चाहिए कि 1 ईयर 2 ईयर 5 ईयर आप सेफ हैं। आप खड़े हो जाइए दोनों, है ना, लास्ट में जो बातें कर रहे हैं। हाँ जी। आप दोनों को ही होना है ना, फोर्थ लाइन में जो कॉर्नर पे बैठे हुए हैं। फिफ्थ से हो जाइए, कोई बात नहीं, एक कैंडिडेट और बैठा हुआ है इधर। आगे आ जाइए आप, है ना, दोनों। आइडियल वैक्सीन क्या होता है, खड़े हो जाइए। आपको अगर कोई बोले कि आपको वैक्सीन बनाना है तो आप उसके अंदर क्या क्या क्वालिटी क्रिएट करेंगे, इन्फेक्टेड नहीं होना चाहिए। हम्म और बस इन्फेक्टेड नहीं होना चाहिए। हाँ जी, लॉन्ग लास्टिंग होना चाहिए। क्विक रेस्पॉन्स जनरेट होना चाहिए। और अपन ने टोटल 7 बताए ना, आप कम से कम 5 बता दो। लॉन्ग लास्टिंग होना चाहिए, क्विक रेस्पॉन्स होना चाहिए,
इन्फेक्टेड नहीं होना चाहिए। ये टॉपिक आपने पढ़ रखा है ना, जरूरत नहीं है पढ़ने की, तभी बातें कर रहे हैं आप लोग। दीज आर सम एग्जाम्पल। किल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, टाइफॉइड वैक्सीन है। लाइव एटेंटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पोलियो वैक्सीन है। टॉक्सॉइड, टिटनस and pure antigen, recombinant hepatitis B vaccine containing hepatitis B surface antigen। पैसिव इम्यूनिटी क्या होता है? क्विक बट शॉर्ट टर्म प्रोटेक्शन अगेंस्ट एन इन्फेक्शन कैन बी प्रोवाइडेड by administering pre-formed antibodies। These antibodies may be obtained from animals, obtained from human beings and synthesized in the laboratory। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पढ़ा आपने, है ना? पढ़ा है आरडीटी? मैं नहीं पढ़ाया था ना। क्या क्या थे वेक्टर, कौन कौन से थे अपने? देखो दो तरीके से थे आपको नंबर ऑफ कॉपी इंक्रीज करने के। पहला तो क्या था अपने पास में, एक तो आपके पास में पीसीआर था, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। दूसरा क्या था? आप इगोराई को इंट्रोड्यूस करवा दीजिए वेक्टर के थ्रू। वेक्टर कौन कौन से थे अपने? प्लाज्मिड, कोजमिड, बैक्टीरियोफेज, एक और था सबसे इंपॉर्टेंट, ईस्ट आर्टिफिशियल। ईस्ट आर्टिफिशियल बेटर क्यों है? ज्यादा केबी का डीएनए कैरी फॉरवर्ड करेगा वो। तो अगर आपको रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी करना है किसी का, तो आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है? ओरिजिन डीएनए का रिक्वायरमेंट रहेगा आपको, एंडोन्यूक्लियस का रिक्वायरमेंट रहेगा आपको, लाइगेज का रिक्वायरमेंट रहेगा आपको, वेक्टर चाहिए आपको, और कल्चर मीडिया चाहिए आपको ग्रो करने के लिए। पीसीआर में क्या कर रहे थे अपन? पीसीआर की जो कंडीशन थी वो क्या थी? पीसीआर की कंडीशन ये थी, पीसीआर ओनली 3 केबी तक के को ही कर पा रहा था ना। पीसीआर के स्टेप क्या थे? स्टेप फर्स्ट, पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। रिक्वायरमेंट क्या क्या आपको पीसीआर के लिए? क्या क्या रॉ मटेरियल चाहिए हमें पीसीआर के लिए? एटीपी, जीटीपी, ये तो आपको चाहिए रॉ मटेरियल के लिए। और कौन सा पॉलीमरेज का रिक्वायरमेंट है? टैग पॉलीमरेज। 3 स्टेप हैं। सबसे फर्स्ट है टेम्परेचर, आप कितना करेंगे? अनवाइंडिंग करेंगे डीएनए को, है ना, 72 पर। कितना टाइम? 3 to 5 मिनट्स है या 30 सेकेंड है? फिर करेंगे 56, और फिर करेंगे, या पहले 96 है फिर 56 है फिर 72 है? एग्जाम आने वाले हैं आप लोगों के ना जल्दी। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्रोड्यूस्ड इन लेबोरेटरी बाय द हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी, academic purpose, diagnostic purpose and therapeutic purpose। Production of monoclonal antibodies. Monoclonal antibodies are clone of each other. They are produced in the laboratory by hybridoma technology। A hybridoma cells is a
breed cells prepared by fusion of B lymphocytes and a myeloma cell. B lymphocytes are antibody forming cells. A given B lymphocytes is detected to form one specific antibodies. Myeloma cells are immortal cancer cell. Fusion of a B lymphocytes with the myeloma cells produce a hybridoma cells. Hybridoma cells is immortal and synthesize one particular antibody. When the hybridoma cells is put in a culture medium, it goes on screening of antibody forever. A given B lymphocyte synthesize only one specific antibody. Since only one B lymphocyte has fused with the myeloma cells, the hybridoma cells secrete only one particular antibody. एग्जाम्पल है ये प्रोडक्शन ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी. आपने इंजेक्ट प्योर एंटीजन, ठीक है, स्प्लाइन सेल लिया, माइलोमा सेल लिया, अपन ने फ्यूजन करवा दिया है पीजी मीडियम में, सेलेक्ट हाइब्रिडोमा सेल्स इन एट मीडियम. Unfused B lymphocyte die soon when their lifespan is over. Unfused myeloma cells cannot survive because they cannot salvage hypoxanthine. De novo synthesis is blocked. साल्वेज पाथवे क्या होता है? साल्वेज पाथवे कहाँ पर पढ़ा आपने? साल्वेज पाथवे आ रहा है कुछ याद? न्यूक्लियोटाइड में, फुल फॉर्म क्या है जीपीआरटी की? फुल फॉर्म है एचजीपीआरटी. क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ गाउट. क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ गाउट क्या सिम्टम्स होते हैं? टॉफी लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगी, है ना? कौन से एंजाइम की डेफिशिएंसी है वहां पे? कौन सी मेडिसिन देते हैं अपन? एलोप्यूरिनोल. एलोप्यूरिनोल कौन से टाइप का इनहिबिटर का एग्जांपल है? आपका सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है ना? टीचर्स ने अपना काम कर दिया आप लोगों को पढ़ाने का ना. अब सिर्फ ये है कि हम जब भी क्लास में आएंगे आपसे क्वेश्चन पुटअप करेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे आपसे. पीडीएच कॉम्प्लेक्स के एंजाइम के नाम कौन बताएगा? अभी तो बहुत सारे थे ऐसे जिनको ये नहीं पता पीडीएच कॉम्प्लेक्स है कहाँ पे. देखिए अब जो भी फैकल्टी आएगी ना, कंटेंट तो कम बचा पढ़ाने के लिए, वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे. क्योंकि अब जो भी कंटेंट है वो कोरिलेट होगा जो आपने पहले पढ़ चुके हैं अपन ऑलरेडी.
पीडीएच कॉम्प्लेक्स लिंक रिएक्शन पायरुवेट टू एसिटाइल कोएंजाइम। पीडीएच कॉम्प्लेक्स ना ही ग्लाइकोलिसिस का पार्ट है और ना ही टीसी साइकिल का पार्ट है। 5 एंजाइम होते हैं वहां पे, कौन कौन से? लिपोइक एसिड। जब भी आप लोग वाइवा देने के लिए जाएंगे, अगर आपको कुछ भी नहीं आएगा तो एग्जामिनर सिर्फ एक चीज तो जरूर कहेगा कि आप अपना टॉपिक बता दीजिए जो आता है वो, है ना। तो कम से कम आप एटलीस्ट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, एंजाइम, हार्मोन, इतने सारे कोई ना कोई तो आप एक टॉपिक पे अपनी कमांड रखिएगा।